Hello, Namaskar, Khamma people. My name is Nandita Sudha Tiwari and welcome back to our channel, that is Professor Tiwari. In our last lecture, we talked about thermodynamics from class 11th physics syllabus. So today we will going to do a very different topic from topic thermodynamics, but this topic is basically not related to class 11th syllabus directly, but it is very fascinating, very beautiful topic. I personally like it because in today's time a lot of research work is going on this particular topic, and this topic is also very important for students studying in BTech or studying in bachelor's or master's, and of course PhD is there too. So let's just start the topic. Let me first write the name of the topic. We are studying thermodynamics, and our today's topic will be about triple point. Triple point. As I always say, whenever you start any new topic, then it's very important that you first understand that what's the name of the topic is saying to you. So of course, as the name say, it is about some point. Okay, so it will be about some point. We have this information, and what does the word triple mean over here? Means there is some three things at one point. Okay, this kind of information we have right now. So what is triple point? Let's just first talk a little about its history. So Sir James Thomson coined the word triple point, or have given this concept triple point. He is basically brother of Lord Kelvin. Kelvin is very famous in physics and thermodynamics in year 1873. So Sir James Thomson coined the word triple point in year 1873. So you can understand that how old this concept is in physics or in thermodynamics. Okay. So now what is triple point? What do you mean by triple point? See, when we talk about thermodynamics, as I said in my last lecture as well, that thermodynamics is all about heat. We are talking about temperature. These kind of phenomena we study in detail. So what does the word triple point mean over here? Triple point will be of what? Will be of any substance. किसका होगा triple point? Triple point किसी substance का होगा. So triple point of a substance is basically a temperature or a pressure at which the substance coexists in its all three phases. What I am saying, triple point of a substance is a temperature and pressure. तो जब मैं कह रही हूँ कि triple point, that means I am talking about a substance temperature and pressure. What I am talking about, जब मैं ट्रिपल पॉइंट किसी सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंड व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर? इट विल बी अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. कोई सिंपल टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा कि कोई भी टेम्परेचर प्रेशर आपने किसी भी सब्सटेंस को किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी प्रेशर पे आपने निकाला तो वो ट्रिपल पॉइंट है. नहीं, यहाँ बात ये है कि किसी भी सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर या प्रेशर जहाँ पे आपको इस सब्सटेंस के तीनों फेजेस एक साथ दिखे. So triple point of a substance is the temperature or pressure at which all the three phases of the substance coexist. तो हमें पता है substance के three phases coexist करते हैं, मतलब आपको एक साथ दिखेंगे. आपको पता है कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनी सब्सटेंस, देयर आर मेनी नेचुरल सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर. सो लेट्स जस्ट से वी हैव द सब्सटेंस ए. ये सब्सटेंस ए है, तो इनके तीन फेजेस होते हैं नेचुरली. मैटर हैज थ्री फेजेस. Plasma भी of course is there, but we don't talk about plasma. We will not going to talk about plasma in this class, वरना एक complete दूसरा lecture उसके ऊपर हो जाएगा. So basically, what is the level that we are having right now is कि मैटर के तीन फेजेस होते हैं. एंड व्हाट आर दीज थ्री फेजेस? द थ्री फेजेस ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड and gas. These are three phases of any substance. Let's just say that the substance is A. So what I'm saying is, if anybody say, or the concept is saying to you that the triple point of this substance A, what will be the triple point of this substance A? It will be a particular temperature. When you will going to bring this substance A at a particular temperature and a particular pressure, then you can witness the substance A, all these three phases at
वंस, आपको एक साथ इनके तीनों फेजेस दिख सकते हैं। आप किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस से लिक्विड में जा सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं, बट एक साथ तीनों फेजेस किसी भी सब्सटेंस के देखना, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूनिक। दैट्स द रीजन ट्रिपल पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रिपल पॉइंट की। अच्छा, इसकी एक और तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। व्हेन वी स्टडी ट्रिपल पॉइंट, वी बेसिकली स्टडी इट इन डिटेल यूजिंग अ फेज डायग्राम। हाउ वी स्टडी इट यूजिंग अ phase diagram. Okay, phase diagram. And what is phase diagram? What is phase diagram? Phase diagram is basically a graph between pressure and temperature. फेज डायग्राम क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट को समझने के लिए आपको उनका फेज डायग्राम, किसी भी सब्सटेंस का फेज डायग्राम पढ़ना पड़ता है। और फेज डायग्राम क्या होता है? इट इज बेसिकली अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर और वेरिंग प्रेशर और टेम्परेचर आप लेते हैं और उसका ग्राफ बनता है। ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रिपल पॉइंट, आई नीड टू स्टडी व्हाट? आई नीड टू स्टडी फेज डायग्राम। यहां तक क्लियर है? अब जब मैं फेज डायग्राम की बात कर रही हूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्राफ। लेट जस्ट से देयर इज एनी अ ग्राफ, ये कुछ ग्राफ है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ग्राफ, देन इफ I want to study triple point, and I want to study triple point in what? I want to study triple point using a phase diagram. So in this phase diagram, you will going to have one graph, but in that one graph, you will going to have three different curves. क्यों तीन डिफरेंट कर्व्स होंगे? जैसे कि मैंने बात करी कि ट्रिपल पॉइंट में बात किसकी हो रही है? ट्रिपल पॉइंट में बात हो रही है किसी एक सब्सटेंस की तीन फेजेस को एक साथ देखने की। तो क्योंकि फेजेस तीन डिफरेंट है, तो इनके तीन डिफरेंट कर्व्स बनते हैं। मतलब इस एक ग्राफ के अंदर यू विल गोइंग टू विटनेस थ्री डिफरेंट कर्व्स, और वो जो तीन डिफरेंट कर्व्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं, और उस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट। सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट? द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट द कॉन्सेप्ट ट्रिपल पॉइंट गिव्स टू अस इज triple point of a substance is that temperature and pressure at which any substance coexist in its all three phases, and all these three phases are in equilibrium. ये सारे phases जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ equilibrium के अंदर होते हैं, चेंज नहीं होते, मतलब इनके पैरामीटर्स आगे। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी डेफिनेशन ट्रिपल पॉइंट की ये होती है दैट इफ यू आर स्टडिंग ट्रिपल पॉइंट फॉर एनी अ सब्सटेंस, देन दैट सब्सटेंस vaporization curve, that substance fusion curve, and that substance sublimation curve. These three curves you will going to study, and all these three curves of a substance will going to meet at one point. एक point पे मिलेंगे और वो point जो है again triple point कहलाएगा। ये अभी आपको थोड़ा सा difficult लग रहा होगा, but जैसे जैसे हम लोग topic को आगे पढ़ेंगे, you will get to know that what is phase diagram and how we can see three different phases of one substance at one time. ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड व्हाट? मरकरी। वी हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड मरकरी। हमारे पास में मरकरी है। सो लेट जस्ट से वी हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड मरकरी, एंड इफ आई आस्क यू दैट्स व्हाट्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ मरकरी, दैट मीन्स अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ मरकरी की बात हो रही है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेम्परेचर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रेशर। वो टेम्परेचर या प्रेशर बताइए मरकरी का जिसके ऊपर मरकरी जो है आपका तीन डिफरेंट फेजेस में एक साथ देख सकें। तो ये तो ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है, बट मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देती हूँ। इट्स अराउंड -38.83440 डिग्री सेल्सियस, एंड इट्स प्रेशर इज अराउंड 0.2 मिली पास्कल। ठीक है, ये पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट, पास्कल एटीएम या बार जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है। तो अगर आप मरकरी को इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे ले आते हैं, देन यू कैन विटनेस ट्रिपल पॉइंट ऑफ, दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ मरकरी, एंड यू कैन विटनेस मरकरीज थ्री डिफरेंट स्टेट्स, थ्री डिफरेंट फेजेस ऑल टुगेदर। ठीक है, ये बात हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, as I said that in order to understand triple point, we first need to understand what? We need to study phase diagram in detail. हमें क्या पढ़ना पड़ेगा डिटेल के अंदर? phase diagram. हमें पढ़ना पड़ेगा phase diagram in detail, and as I said, phase diagram is basically a graph or a diagram between pressure and temperature. ठीक है, तो देखिए अगर हमें ये phase diagram पढ़ना है, तो इससे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए, first we need to ask ourselves one question, and what's that question is, we know that let's just say we have any substance A.
कोई भी हमारे पास सब्सटेंस क्या है, ए है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सॉलिड में हो सकती है आपके पास, सॉलिड से आप लिक्विड में लेके जा सकते हैं, देन गैस में लेके जा सकते हैं, या गैस से ये रिवर्सिबल भी है, मतलब गैस से आप लिक्विड ले आए, लिक्विड से आप सॉलिड लेके आ जाएं। दिस इज पॉसिबल, वी ऑल नो दिस प्रोसेस कि इस तरीके से किया जाता है। बट हियर द क्वेश्चन इज, the very first question is that is it possible to convert solid directly into gas or gas directly into solid without converting into liquid in between? क्या ये पॉसिबल है कि आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में, मतलब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दें, या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर दें बिना लिक्विड को बीच में लाए, बिना लिक्विड के फेज में? ये सारे क्या हैं, फेजेस हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस आर फेजेस। सो इज इट पॉसिबल? इन अ सिंपल लैंग्वेज, येस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बट कैसे पॉसिबल है वो अभी हम फेज डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। उसके लिए फेज डायग्राम के लिए अभी आपको एक और चीज, एक तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि सॉलिड से आप क्या गैस में जा सकते हैं या गैस से आप सॉलिड में जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल, बट हाउ वी विल गोइंग टू अचीव दैट थिंग, दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग फेज डायग्राम। बट फॉर फेज डायग्राम ऑफ कोर्स वी नीड pressure and temperature, but pressure and temperature of what? We need pressure and temperature of any substance। किसी substance का हमें pressure और temperature चाहिए, तो हम एक substance यहाँ मान लेते हैं। substance आप क्या ले सकते हैं, सबसे journal substance हम लेते हैं H2O। this is the chemical name of water का, ये क्या है, chemical name है H2O। तो हमने consider क्या कर लिया है, H2O, and we know कि H2O जो है वो तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड फेज में भी होंगे, सॉलिड में किस फॉर्म में होते हैं, आइस की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड में होंगे वाटर की फॉर्म के अंदर, ठीक है, देन गैस के अंदर गैस फेज में होंगे वेपर के फॉर्म में। वी नो दिस अबाउट वाटर, वी नो दिस अबाउट H2O के बारे में हमें पता है कि तीनों फेजेस में जा सकते हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग इज, for example, if you have H2O in solid form, means you have H2O in solid phase in ice form. Now you want to convert it into liquid phase. आपको H2O को जो आपके पास आइस की फॉर्म में है, आपको उनको कन्वर्ट किस में करना है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है या वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है। आप कैसे करेंगे? इफ यू हैव आइस, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हीट इट अप। आपको हीट देनी पड़ेगी, और हीट कैसे देंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर को अगर आपके इसमें आइस है तो आप अगर उनको हीट देंगे या उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। वी नो दिस थिंग दैट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड वी कैन गो H2O, तो वाटर फॉर्म के अंदर यहाँ पे ये आ गई है। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। व्हाट इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग फेज चेंज। तो हम लोग चेंज वर्ड यूज नहीं करते, दो इट इज नॉट रॉन्ग। Solid, liquid, gas, these are phases. What are these? These are phases. But we don't use the word change with a phase. We use transition. We say phase transition. हम क्या कहते हैं, आप phase change बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, but it's a very layman word and it's a jargon word of thermodynamics. So we say phase transition होना, solid से liquid, liquid से gas and so on. ठीक है। अब ये जो आपका फेज ट्रांजिशन है, ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। कौन से हैं वो दो पैरामीटर्स? वो है एक आपका प्रेशर और दूसरा है आपका टेम्परेचर। इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर ये जो आपका फेज ट्रांजिशन है ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो नाउ वी विल गोइंग टू डू अ फेज डायग्राम। अब हम फेज डायग्राम पढ़ेंगे जिसमें हमारा जो क्वेश्चन हमने पूछा है हमें उसके थ्रू ट्रिपल पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, ग्राफ के थ्रू, फेज डायग्राम के थ्रू, और हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स जस्ट सी, हमने क्या सब्सटेंस अज्यूम करी है, हमने सब्सटेंस तो अज्यूम करी है H2O। सो द वेरी फर्स्ट डायग्राम और द वेरी फर्स्ट फेज ट्रांजिशन दैट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। हम किस में जा रहे हैं, लिक्विड टू गैस। तो ये मान लेते हैं हम कि ये हमारा क्या है, दिस इज आर graph. We are considering pressure at y-axis and we are considering temperature at x-axis. ठीक है, ये आपका कुछ origin जो भी आप मान सकते हैं. So we have this graph. Now when we move from, if we, for example, if we have H2O in a liquid form, आपके पास अगर H2O liquid form में है और आपको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है इन्हें, ये यहाँ क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट H2O in its present liquid form to gas form, then the type of graph that you will going to get will be some kind like this.
ये कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। अच्छा, ये मैंने मन से नहीं ड्रॉ करा है, इट्स ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आया है कि जब भी आप अगर पानी को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का जो ग्राफ है, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलता है। सिंपल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन टेक वाटर इन अ पैन, okay, and you can like put it on a burner, and on the burner you will gonna see that as the temperature rises it get converts into vapor form, ठीक है। तो ये इस तरह का जो कर्व है आपको कुछ इसमें मिलता है। अब देखिए इस कर्व के लेफ्ट साइड पे तो आपको क्या मिलेगी, इस कर्व के लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर, यहां तो मिलेगा वाटर लेफ्ट साइड पे, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्व यू विल गोइंग टू गेट, ये आपका लिक्विड साइड हो गया, ये गैस साइड हो गया, और यहाँ पे आपको क्या किस फॉर्म में मिलेगा, H2O वेपर फॉर्म के अंदर, ठीक है। दिस इज द लिक्विड टू गैस फेज ट्रांजिशन। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व यू विल गोइंग टू गेट वाटर और लिक्विड, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्व यू विल गेट H2O इन अ वेपर और अ गैसियस फॉर्म। इस कर्व को देखिए आप क्या कहते हैं, इस कर्व को हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम कर्व। क्या कहते हैं, देखिए लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए लिक्विड गैस फेज है, ये फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम कर्व। इक्विलिब्रियम क्यों यूज किया गया है वो अभी अपन 2 स्टेप आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, कैसे अचीव करेंगे आप, आपको H2O लिक्विड फॉर्म में दे दिया गया है, गैस में कन्वर्ट करना है। हाउ यू विल गोइंग टू डू इट, एज आई सेड फेज डायग्राम इज डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स, वन इज द pressure and other is the temperature. So you have to keep one parameter constant and other you need to vary. So let's just say this is our first step, keeping pressure constant. आप pressure को रखिए constant और temperature को क्या करेंगे आप increase करिए। What we are doing basically, we have, for example, we have water, we have H2 in water form or liquid form, so we are keeping the pressure of the water constant and we are increasing the temperature, हम temperature को increase कर रहे हैं। So as the temperature will going to increase, you will going to see that your water in liquid form will going to convert into vapor in gaseous form। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं कर देती हूँ, ये देखिए ये लिक्विड से आप कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड से आप जा रहे हैं गैस फॉर्म के अंदर। तो जब आप लिक्विड से गैस फॉर्म में अपने सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं, हमारे यहाँ सब्सटेंस H2O है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेपराइजेशन। क्या कहा जाता है प्रोसेस को, वेपराइजेशन। व्हेन यू कन्वर्ट योर सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, देन वी से दैट द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। एंड यहाँ इसको करने के लिए हमने क्या करा है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करा है। अगर मैं इनका वाइस वर्सा कर दूं, what is vice versa, that means keeping again pressure constant, pressure constant है, और temperature को अगर मैं क्या कर दूं, decrease, keeping pressure constant. For example, I had H2O in liquid form, I converted it into gas form by keeping pressure constant and increasing temperature. Now I have H2O in vapor form and I want to convert it into liquid form. So what I need to do, I need to keep again pressure constant and I need to decrease the टेम्परेचर। टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो ये जिस फॉर्म के अंदर किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। व्हाट वी से इट इज कंडेंसेशन। कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज कंडेंसेशन। ठीक है, ये कंडेंसेशन हो गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक बात देखिए, पानी को आपने बर्नर पे रखा, ऑन करा, तो आप लिक्विड से गैस में आप इजीली कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही फॉर एग्जांपल विंटर्स के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर एनवायरनमेंट में आता है, गैस वगैरह, धुआं जो आपके आसपास फॉग वगैरह रहता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो मॉइस्चर आता है एनवायरनमेंट में, और डिक्रीज होता है तो स्नो पड़ती है। तो वही बस एग्जाम्पल है कि फर्स्ट केस में प्रेशर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो गैस में चला जाएगा, वे वेपराइजेशन कहलाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट बट आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करा तो ये गैस से लिक्विड में आ जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिक्विड टू गैस फेज के ट्रांजिशन में 2 प्रोसेस समझी, एक है वेपराइजेशन और एक है कंडेंसेशन। यहां देखिए, यहां पे इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कीप प्रेशर कांस्टेंट एंड यू नीड टू चेंज टेम्परेचर इन ऑर्डर टू अचीव वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। आप वेपराइजेशन और कंडेंसेशन जो है प्रेशर को चेंज करके और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के भी अचीव कर सकते हैं। यहां तक बात हो गई। अब देखिए, मैंने कहा इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड गैस फेज। सही बात है, क्योंकि आप लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं या गैस से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कर्व मैंने क्यों बोला, इक्विलिब्रियम कर्व मैंने इसलिए बोला बिकॉज
अगर मैं ये मान लीजिए आपका जो कर्व है ये कुछ यहाँ तक है, अगर इस कर्व से मैं ऊपर जाएंगे, मतलब आप देखिए ये यहाँ तक आपका, अगर मैं लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ तक आपका कुछ प्रेशर होगा, यहाँ तक आपका कुछ टेम्परेचर होगा। तो अगर मैं इस कर्व से ऊपर, ये कर्व इनफाइनाइट नहीं है, दिस कर्व इज नॉट इनफाइनाइट, देयर इज नथिंग इनफाइनाइट इन दिस यूनिवर्स। तो अगर इस कर्व से मैं ऊपर जाऊंगी तो आपका जो H2O सब्सटेंस, तो क्या है हमारे पास H2O है, तो H2O इस कर्व तक तो आपको लिक्विड और गैस दोनों फेज में कन्वर्जन पॉसिबल है वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के थ्रू। मगर अगर मैं इस कर्व से ऊपर जाऊंगी, इस पॉइंट से ऊपर, सो बोथ ऑफ दीज फेजेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इस कर्व से ऊपर दोनों फेजेस H2O के इक्विलिब्रियम में होंगे। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अभी जो सब्सटेंस आपके पास में है ये लिक्विड हो रही है या गैस हो रही है। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक साथ होंगे, और वो बात अपन आगे करेंगे। यहां बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के ऊपर दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। कोई भी अलग अलग फेज नहीं है कि ऊपर जाने के बाद में यहाँ अभी लिक्विड है या गैस है। ये लिक्विड गैस का जो आपका कन्वर्जन है ये यहीं खत्म हो जाएगा, और इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्या है और ऊपर जाने पे आपको क्या मिलेगा, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये आपका यहाँ पे जो चीज़ है वो हो गई। अब आप देखिए इसका हमें दूसरा जो है वो ट्रांजिशन देखना है। मैं इसको रब कर देती हूँ। दूसरा ट्रांजिशन जो है, सब्सटेंस हमारी क्या है, H2O ही सब्सटेंस है, और हमारा जो दूसरा ट्रांजिशन होगा लिक्विड टू गैस हम कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, the next transition that we will going to study will be about solid to liquid. Okay, the next transition will be about solid to liquid. We have studied liquid to gas, curve ऐसा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। अब हमें solid से अगर आपको liquid में convert करना है, that means आप ice से किधर जा रहे हैं, water की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए आपका ग्राफ कैसा होगा, देखिए इसके लिए जो आपका ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। अगेन मैंने नहीं ड्रॉ करा है, एक्सपेरिमेंटली इस तरह से आता है, ठीक है। अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, आपके पास में जो सब्सटेंस है वो H2O है, तो आइस से वाटर में आप जाएंगे तो ये इस तरह का ग्राफ आता है। इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ऐसे करके, ये इस तरह का ग्राफ आता है। ओके, सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व यू विल गोइंग टू गेट सॉलिड, आपको H2O जो है वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब सॉलिड फेज में आइस फॉर्म में दिखेगा। और ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्व यू विल गोइंग टू गेट व्हाट, यू विल गोइंग टू गेट H2O इन लिक्विड फॉर्म। आपको H2O लिक्विड फॉर्म में दिखेंगे, लिक्विड फेज में वाटर फॉर्म के अंदर। और इस कर्व को आप क्या कहते हैं, इस कर्व को आप सिंपली क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड फेज अगेन इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है। सॉलिड लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम कर्व कहेंगे। अब इसमें मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आगे सेम ही चीज होगी। अगर आपके पास में H2O आइस फॉर्म में, आपको अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रख लीजिए, टेम्परेचर को डिक्रीज करिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करिए। प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण आइस आपकी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और वो वाटर या लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहां देखिए दूसरी चीज, वैसे ही वाइस वर्सा यहाँ पे क्या होगा कि अगर वाटर में या लिक्विड फॉर्म में आपकी आ गई है H2O, तो वहां पे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो यहां देखिए फेज ट्रांजिशन हमारा कैसे हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन किस में हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में तो क्या प्रोसेस कहलाती है, मेल्टिंग। एज आई सेड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आइस मेल्ट हो जाएगी, इसलिए मेल्टिंग प्रोसेस। और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी फ्रीजिंग प्रोसेस। ये क्या कहलाएगी, फ्रीजिंग प्रोसेस। और सेम चीज कर सकते हैं इसमें भी आप, प्रेशर को चाहे आप चेंज करिए और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें, या टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख के प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, टेम्परेचर को चेंज कर लीजिए, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिफरेंट कर्व्स। हमने फेज ट्रांजिशन करा लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू लिक्विड, तो हमारे पास दो डिफरेंट कर्व्स हैं। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों कर्व्स को हम कंबाइन करेंगे। क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्रिपल पॉइंट समझना है, ट्रिपल पॉइंट लेना है। तो देखिए आप किस तरीके से करते हैं इसको, अब कंबाइन करते हैं दोनों कर्व को। क्या थे हमारे दोनों कर्व, हमारे दोनों कर्व्स किस तरीके से थे, मैं इधर बना लेती हूँ एक बार फटाफट से। ये हमारा पहला कर्व था, प्रेशर मान लेते हैं इधर, ये टेम्परेचर मान लेते हैं इधर, और ये आपको
इस तरह से ये आपका ये कर्व बन रहा था, इधर लिक्विड फॉर्म थी, इधर गैस फॉर्म थी। दूसरा कर्व आपका कैसे था, दूसरा कर्व आपका वही प्रेशर था और ये यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर था, और वो कर्व जो है आपका कुछ इस तरीके से ये ऐसे आ रहा था, इस साइड सॉलिड था, इस साइड लिक्विड था। ये आपको कर्व मिले थे दो। इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ दीज curves, if you combine both of these diagram, then you can see that how triple point forms. triple point किस तरीके से फॉर्म होता है वो आप देख सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये ग्राफ मैंने इनका कॉम्बिनेशन का ग्राफ मैं यहाँ बनाती हूँ कुछ। ओके, सो आई हैव प्रेशर ओवर हेयर, आई हैव टेम्परेचर ओवर हेयर। अब कंबाइन कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि ये दोनों कर्व कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे आप रैंडमली यू कैन नॉट कंबाइन एनीथिंग। ये अचीव करने के बाद साइंटिस्ट डिसाइडेड दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी बोथ ऑफ दी। ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ आपके डेटा का, आपके काम का रिजल्ट होता है, कंक्लूजन होता है, उन्हें हमें स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे इन ग्राफ को ऐसे रैंडमली नहीं कंबाइन कर दिया गया था स्टैटिस्टिकली देखने के लिए। यहाँ पे देखिए, ऐसे नहीं कि आपने वाटर, ये वाला जो कर्व है लिक्विड गैस को सॉलिड लिक्विड के साथ नहीं कर दिया, नहीं। क्यों, देखिए आप जब है ना प्रोसेस पढ़ते हैं तो सॉलिड से लिक्विड जाते हैं और लिक्विड से गैस जाते हैं, या फिर आप यूं आते हैं, ठीक है, लिक्विड इज इन द सेंटर। तो आपको ऐसे ही इस ग्राफ को कंबाइन करना है कि आपका लिक्विड सेंटर में आए, जिससे कि आपका एक नॉर्मल फिनोमेना जो है साइंस का वो फॉलो हो सके। तो ये कर्व किस तरीके से बन जाएगा, लेट्स जस्ट सी, वी हैव दिस सॉलिड कर्व, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा सॉलिड कर्व था और ये यहाँ से हमारा ये कुछ इस तरीके का ये लिक्विड कर्व था। ये क्या हो गया, आपका लिक्विड कर्व हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए किस तरीके से हो रहा है, यहां पे दिस इज द सॉलिड कर्व, दैट मीन्स दिस साइड यू विल गोइंग टू सी H2O इन सॉलिड फॉर्म। इस साइड आपको H2O क्या मिलेगी, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगी। एंड इन द मिडल यू विल गोइंग टू गेट, बिकॉज सॉलिड टू लिक्विड था, सॉलिड टू लिक्विड, सो हेयर यू विल गोइंग टू सी H2O इन लिक्विड फॉर्म, एंड दिस साइड विल बी गैशियस फॉर्म। तो हम इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको H2O गैशियस फॉर्म के अंदर मिलेगी। तो ये तीन डिफरेंट आपके कर्व जो है बन गए। अब जैसे दो डिफरेंट कर्व्स बन गए, अब आप यहाँ देखिए, बिकॉज वी हैव कंबाइंड बोथ ऑफ दीज कर्व, सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इनका कोइंसिडेंट पॉइंट है, अगर आप इसको यहाँ से देखें, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, तो ये हम मान लेते हैं कुछ PC और ये हम कुछ मान लेते हैं TC लेट जस्ट से। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट। क्या कहलाएगा, ये ट्रिपल पॉइंट। वाई, एज आई सेड, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए जहां पे आपकी कोई भी सब्सटेंस तीनों फेजेस में एक साथ एग्जिस्ट करे। तो यहां देखिए, इस पॉइंट के ऊपर, अगर इस पॉइंट पे, मतलब अगर ये प्रेशर और ये टेम्परेचर, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर अगर आप अचीव कर लेते हैं H2O का, तो आपको H2O यहाँ से सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में भी जा सकते हैं, मगर इस पॉइंट के ऊपर आपको H2O जो है वो तीनों फेजेस में मिलेंगी। मतलब आपको H2O एक साथ सॉलिड भी दिखेगी, लिक्विड भी दिखेगी, गैस भी दिखेगी एट दिस पॉइंट T, ठीक है। दूसरी बात, दो कर्व्स तो आपको मिल गए, मगर मैंने एक और ट्रिपल पॉइंट की आपको डेफिनेशन बताई थी। वन मोर डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट वाज दैट कि जहाँ पे सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व और फ्यूजन कर्व, ये तीनों जहां मिलते हैं वो पॉइंट भी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो अभी ये पॉइंट तो ट्रिपल पॉइंट हो गया, बट कर्व आपके पास में क्या है, दो ही है। तो आप देखिए क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट से, बेसिकली वी नो दैट दिस कर्व, दिस ट्रिपल पॉइंट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम T से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि डेफिनेट बात है कि आइस कुछ होगा, आपने टेम्परेचर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना पड़ेगा। अगर यहाँ ओरिजिन पे आ जाएंगे तो फिर ये लिक्विड और गैस में तो आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। मगर अगर मैं प्रेशर को और टेम्परेचर को लो करूँ, H2O मेरे पास में है, अगर मेरे पास में H2O लेट जस्ट से आइस फॉर्म में है, और अगर मैं उनका प्रेशर और टेम्परेचर इफ आई डिक्रीज इट और इफ आई लोअर इट, देन व्हाट बेसिकली गोइंग टू हैपन इज आई विल गोइंग टू गेट अ थर्ड कर्व। ये मुझे एक कोई थर्ड कर्व मिलेगा, और इस थर्ड कर्व को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सॉलिड गैस फेज, ठीक है। ये क्या था आपका सॉलिड लिक्विड फेज, ये आपका था लिक्विड गैस फेज, और ये आपका कर्व क्या कहलाएगा, सॉलिड गैस फेज। कैसे, देखिए हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ टेम्परेचर 10 है और यहाँ प्रेशर 5 है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, यहाँ 10 है, यहाँ
आपका 5 है। तो जब आपका प्रेशर 5 होगा और जब आपका टेम्परेचर 10 होगा, उस पॉइंट तक तो आपको H2O तीनों फेजेस, H2O के तीनों फेजेस देखने को मिल जाएंगे। बट अगर मैं इस पॉइंट से लोअर कर दूं, मतलब अगर मैं 5 से नीचे चली जाऊं, 4 पे चली जाऊं और टेम्परेचर 10 से 9 पे चली जाऊं, तो मेरे क्या सब्सटेंस आएगी, उस टाइम पे क्या प्रोसीजर होगा? यहां पे क्या होगा, ये होगा, देखिए यहां पे क्या होगा, सॉलिड टू गैस का कन्वर्जन, डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगी गैस के अंदर। अगर मैं ये ट्रिपल पॉइंट वाले टेम्परेचर प्रेशर से लोअर रखती हूं अपना प्रेशर और टेम्परेचर, तो आपकी जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, और वैसे ही गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है सॉलिड में। तो अगर आप सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैस में, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट वी से, इट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। किस तरीके से हो रहा है कि अगर आपने एक बार, अगर आपको किसी सब्सटेंस का ऑलरेडी ट्रिपल पॉइंट पता है, जैसे कि देखिए H2O का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, H2O का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, दैट मीन्स मुझे उनका टेम्परेचर और प्रेशर बताना है। H2O का ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कुछ होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो होता है 0.06, हाँ कुछ आपका आई थिंक किस में, ये बार में होता है, नहीं बार में नहीं, हाँ बार में ही होता है। ये कुछ इसका H2O का ट्रिपल पॉइंट है, मतलब ये कुछ टेम्परेचर और प्रेशर। अगर आप H2O को इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे ले आएंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। उस सिचुएशन में आपको H2O जो है वो तीनों फेजेस के अंदर आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इस टेम्परेचर और प्रेशर से लो करेंगे, इस रेंज में लाएंगे, तो आपकी H2O तीनों फेजेस में कन्वर्ट नहीं होगी, वो सॉलिड से या तो गैस में या गैस से सॉलिड में लेके आ सकते। सो कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड कन्वर्टिंग गैस इनटू सॉलिड इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आपने देखा कि ये तो वो पॉइंट था जहां पे ये ट्रिपल पॉइंट का जो टी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दिस मीन्स दिस इज अ पॉइंट ऑफ ट्रिपल पॉइंट। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, यू कैन विटनेस H2O इन इट्स ऑल 3 फॉर्म्स। आप H2O को उनके तीनों 3 स्टेट्स के अंदर, सॉरी फेजेस के अंदर देख सकते हैं। और जो मैंने बात कही थी कि सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व और वेपराइजेशन कर्व, ये तीनों एक पॉइंट के ऊपर जहां मीट करते हैं वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा सब्लिमेशन कर्व, ये आपका हो जाएगा वेपराइजेशन कर्व, यहाँ गैस है, और ये आपका हो जाएगा फ्यूजन कर्व। ये तीनों एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ट्रिपल पॉइंट का पॉइंट। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट, वेयर वी हैव सीन दैट एट दिस पर्टिकुलर temperature and pressure we can see H2O in its all 3 phases, that is the solid, the liquid and the gas phases. And the other definition of this triple point is the 3 curves for any a phase diagram, that is the fusion curve, the vaporization curve and the sublimation curve. The point at which these 3 curves meet each other is also known as the point of the triple point. Okay, कैसे था? ये था आपका, ये आपका हो गया वेपराइजेशन कर्व, लिक्विड टू गैस इज वेपराइजेशन कर्व। ये आपका सॉलिड से लिक्विड आपका कौन सा कर्व कहलाता है? ये तो सब्लिमेशन हो गया, ये वेपराइजेशन, एंड दिस इज द फ्यूजन कर्व। तो ये तीनों कर्व जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो भी आपका ट्रिपल पॉइंट होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने H2O के केस में आपको बताया कि H2O का ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर तो रहता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहता है 0.06 ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब। तो इस पर्टिकुलर अगर ये पैरामीटर्स आप, मतलब यहाँ जब टेम्परेचर H2O का टेम्परेचर जब 0.001 रहा और प्रेशर 0.006 रहा, उस पॉइंट के ऊपर आपको H2O के तीनों फेजेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर इससे टेम्परेचर आप लो कर देंगे 0.01 से और प्रेशर अगर आप 0.06 ATM से कम कर देंगे, तो आपको ये कौन सा कर्व मिल जाएगा? सब्लिमेशन कर्व, जहां से सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस के अंदर बिना लिक्विड के बीच में आए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ तक। अब आप देखिए, मैं इस कर्व को एक बार फिर ऊपर बनाऊंगी और एक और कॉन्सेप्ट इससे निकलता है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस कर्व अगेन,
ये हमारा कर्व है, वी हैव प्रेशर ओवर हेयर, दिस इज y एक्सिस एंड वी हैव टेम्परेचर ओवर हेयर, दिस इज x एक्सिस। कैसा था हमारा? सबसे पहले हमारा सॉलिड टू लिक्विड कर्व था जिसे हम फ्यूजन कर्व कहते हैं। उसके बाद हमारा लिक्विड टू गैशियस कर्व था जिसे हम वेपराइजेशन कर्व कहते हैं। और उसके बाद में अगर इस पॉइंट से लोअर टेम्परेचर और प्रेशर आप करेंगे तो यहाँ ये जो कर्व आपके पास में आता है, ये कर्व आपका सब्लिमेशन कर्व कहलाता है। ठीक है, इन तीनों कर्व को जिस पॉइंट पे आप मीट कराते हैं, ये तीनों कर्व जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, दिस इज PC एंड दिस इज TC, और हम H2O के लिए देख रहे हैं ये। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ नया कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। आपको ट्रिपल पॉइंट समझ आ गया? आपको ट्रिपल पॉइंट, यहाँ मैं दोनों तरफ एरो कर देती हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि यहाँ ऊपर तो सब्लिमेशन हो रहा है, ऊपर तो क्या है आपका सब्लिमेशन, और नीचे जो है आपका क्या है वो क्रिस्टलाइजेशन, मतलब गैस टू सॉलिड का कन्वर्जन। ये पूरा गैशियस साइड है, इस तरफ H2 हमेशा गैशियस साइड में रहेगी, मतलब इस टेम्परेचर से आगे, और इस प्रेशर पे गैस में रहेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये लिक्विड के अंदर आ रही है, और इस पर्टिकुलर रीजन प्रेशर और टेम्परेचर पे ये सॉलिड के फेज के अंदर आपको दिख रही है, और एग्जैक्ट इस पे तो तीनों फेजेस में दिखेगी। ठीक है, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका ट्रिपल पॉइंट का जो कर्व है वो T से शुरू होता है। आप जैसे मैंने कहा यहाँ से तो शुरू हो नहीं रहा, ये नीचे वाला आपका ट्रिपल पॉइंट का कर्व नहीं है। ट्रिपल पॉइंट का कर्व आपका क्या है? ट्रिपल पॉइंट का कर्व आपका इस पॉइंट T पॉइंट से शुरू हो रहा है, और ये जो आपका कर्व है ये वाला, ये कर्व ट्रिपल पॉइंट का आपका इनफाइनाइट नहीं होता। दिस इज नॉट एन इनफाइनाइट कर्व, एज आई सेड, ये एक इसका टर्मिनेशन होता है। इस कर्व का कहाँ होगा टर्मिनेशन? कुछ इस पॉइंट पे, लेट जस्ट से दिस पॉइंट इज C। इस पॉइंट तक तो ये आपको क्या दिखा रहा है? यहाँ देखिए सॉलिड तो यहाँ खत्म हो गया। अब आपकी सब्सटेंस जो है ना, H2O के 3 फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मगर सॉलिड का पॉइंट इसके बाद में खत्म हो जाता है। अब आपका H2O सॉलिड में नहीं आ सकता। अब आपका किस में है होगा H2O? या तो लिक्विड में या फिर गैस में, या आप इसको गैस से लिक्विड ले जा सकते हैं या लिक्विड से गैस में लेके जा सकते हैं। बट वो भी आप कब तक कर सकते हैं? इस पॉइंट तक ही कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट योर H2O फ्रॉम लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड टिल पॉइंट C और बिलो दिस पॉइंट, या तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, या फिर इस पॉइंट के मतलब नीचे होना चाहिए। आफ्टर दिस पॉइंट और अबव दिस पॉइंट योर टू फेजेस विल बी इक्वल, मीन्स योर टू फेजेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैंने आपको लिक्विड गैस के कर्व के अंदर कहा था कि यहाँ तक तो आपको H2O के या किसी भी सब्सटेंस के दोनों फेजेस जो हैं वो डिफरेंट आपको दिख सकते हैं, कि ये अभी हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ये अभी हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, फिर गैस से लिक्विड में चले गए। बट इसके ऊपर जो दोनों फेजेस हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। अब ये क्यों होते हैं ये हम देखते हैं। इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। देखिए यहाँ तक आप दोनों फेजेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अगर आप इस पॉइंट के ऊपर चले गए, इस पॉइंट को कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और अगर आप इस पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे डॉटेड लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा और यहाँ पे ये कुछ टेम्परेचर होगा। यहाँ तक आप लिक्विड फेज, लिक्विड गैस लिक्विड का जो आपका कन्वर्जन गेम है वो आप खेल सकते हैं। बट इसके ऊपर जाते ही आपको जो सब्सटेंस मिलेगी उनका आप फेज डिटरमाइन नहीं कर सकते। सॉलिड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। ये कर्व आपका लिक्विड टू गैस का है, तो आप ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि अब ये जो सब्सटेंस आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, ये लिक्विड है या गैस है, ये नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो रीजन होता है, ये रीजन कहलाता है सुपर क्रिटिकल रीजन। क्या कहलाता है ये रीजन? ये पूरा रीजन कहलाएगा सुपर क्रिटिकल रीजन, and this point will be known as critical point. What is critical point? It is the maximum pressure and temperature point where you can distinguish between a substance, liquid and a gaseous phase. आप किसी भी substance का, यहाँ तो हमने H2O लिया है, आप कोई भी substance लेंगे तो उसका critical point अगर आपको कहा जाता है किसी भी substance का critical point, मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर होता है जहां तक आप उस सब्सटेंस का लिक्विड और गैस फेज के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर उस मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर से ऊपर चला जाए
तो आप नहीं बता सकते कि अब आपकी ये जो सब्सटेंस है ये लिक्विड है या गैस है। तो फिर इस रीजन में, इस रीजन को जिसको हम सुपर क्रिटिकल रीजन कह रहे हैं, इस रीजन के अंदर वो सब्सटेंस फिर क्या कहलाएगी? वो सब्सटेंस कहलाती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। क्या कहलाती है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। फ्लूइड क्यों? सी बोथ ऑफ दीज लिक्विड एंड गैस आर ऑफ फ्लूइड नेचर। ये फ्लूइड नेचर की होती है। अब क्योंकि आप ये तो नहीं बता सकते कि अब आपको यहाँ जो सब्सटेंस मिल रही है वो लिक्विड है या गैस है, ये तो आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, मगर वो होगी किस नेचर की ही? वो होगी 100% फ्लूइड नेचर की, क्योंकि सॉलिड नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि सॉलिड की तो लिमिट यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है। सुपर और क्रिटिकल क्यों? देखिए, क्रिटिकल इसलिए बिकॉज दिस वॉज द हाइएस्ट पॉइंट टिल वेयर यू कैन कन्वर्ट और you can differentiate between the two phases of any substance, liquid and gas phases. After this, your substance will gonna show a different behavior, strange behavior दिखाएगी, इसलिए हमने critical word use करा. और super क्यों? super का मतलब होता है extraordinary. आप physics में कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट के आगे अगर सुपर वर्ड आपको मिलता है लिखा हुआ, दैट मीन्स वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर दिखा रहा है, ऑब्वियस बिहेवियर नहीं है. मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक कि लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, ये जो कन्वर्जन होता रहेगा इस रीजन तक के अंदर, यहाँ तक मैक्सिमम, वो अब यहाँ ऊपर नहीं होगा. इसलिए इसको कहा गया है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसलिए इसका नाम है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, या इसको हम शॉर्ट के अंदर SCF के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब आप देखिए ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंस क्या है. ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस allows the substance to coexist its all three phases. ट्रिपल पॉइंट तो वो पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का जहां पे आप कोई प्रेशर और टेम्परेचर अगर उस सब्सटेंस का लेते हैं तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपको सब्सटेंस के तीनों फेजेस दिख जाएंगे. और क्रिटिकल पॉइंट जो है ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर होता है सब्सटेंस का जिसके ऊपर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि अभी ये जो आपकी सब्सटेंस है ये लिक्विड है या गैस है. उसके नीचे नीचे तक ही ये दो फेजेस सेपरेट रहते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपकी बात हो गई है. अब हम लास्ट चीज़ जो देख रहे हैं ये हमने देख लिया है ना, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको. लास्ट चीज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है ये जो आपकी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हमने बात करी. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है. क्यों है? देखिए, ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बेसिकली है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. ट्रिपल पॉइंट बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, 1873 से चला आ रहा है, अभी भी देखा जाता है रिसर्च में, अभी भी बहुत ज़्यादा यूसेज है इनका. क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मगर यहाँ जो ये सब्सटेंस मिल रही है ना आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, इसकी बहुत एप्लीकेशन है फिजिक्स के अंदर और बहुत वेरिड फील्ड में एप्लीकेशन है. इसलिए इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता तो होनी चाहिए ना कि ये एक अलग तरीका सब्सटेंस जो है, ना तो ये लिक्विड में है ना गैस में है, कहीं बीच में है, तो ये क्या है. सबसे पहले सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की मैंने आपको जानकारी दे दी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका क्रिटिकल पॉइंट से टेम्परेचर ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर ऊपर होना चाहिए. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी अपन आगे देखते हैं कि क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, पहली इसकी कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास में H2O की हमने जैसे बात करी यहाँ सब्सटेंस की, तो अगर H2O का मैं इस क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ले जाऊं टेम्परेचर और प्रेशर, अगर H2O का मैं टेम्परेचर प्रेशर इस क्रिटिकल पॉइंट मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेशर से ऊपर ले जाती हूं, तो उस केस के अंदर वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाएगी H2O. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को भी आपको क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर लेके जाना है और जो H2O है उसका प्रेशर मतलब उसको इतना कंप्रेस करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा कंप्रेस करना है जिससे कि आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मिल सके. ठीक है, ये दो चीज़ें इसके साथ में आपकी हो जाती है. अब इसके लिए इसके दो मेन एग्जाम्पल हैं. एक तो है आपका CO2 और एक एग्जाम्पल आपका इसका क्या है, वाटर. ठीक है, दो इसके सबसे वाइडली यूज्ड होने वाले एग्जाम्पल्स हैं. देखिए CO2 तो क्यों है, CO2 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. मतलब CO2 का जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. क्यों? सबसे पहले तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब हार्मफुल नहीं है, जहरीला पॉइजनस नहीं है, नॉन टॉक्सिक होता है, केमिकली इनर्ट है, मतलब आपको ये एनवायरनमेंट में, नेचर में बहुत अच्छी प्रपोर्शन में, मात्रा में अवेलेबल है CO2. तो एक फ़ायदा ये है. नॉन फ्लेमेबल है, मतलब आग पकड़ना और इससे ज़्यादा खतरा नहीं है, तो वो भी है. दूसरा, आपको CO2 बहुत ही चीप पड़ता है.
अगर आपको CO2 से इसका CO2 का अगर आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनाना है देन इट्स वेरी इजी बिकॉज इट इज अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस एंड विथ वेरी हाई प्योरिटीज। बहुत ही अच्छी प्योरिटी के साथ में ये आपको बहुत ही चीप प्राइस के अंदर आपको CO2 मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ CO2 का, अगर आपसे कहा जाता है कि CO2 का क्रिटिकल पॉइंट बताइए तो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट मतलब वही आपको क्रिटिकल प्रेशर बताना है। कितना हो जाएगा क्रिटिकल प्रेशर? इसका होता है कुछ 31 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है इनका? वो होता है 74 बार। ये आपको, ये एक्सपेरिमेंटल है, हमें तो याद है क्योंकि काम करते हैं, बट आपको ध्यान नहीं भी रखेंगे तो इट्स कंप्लीटली फाइन। अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे कभी काम करेंगे तो वैसे ही याद ये रह जाएगा। तो अगर आपको बोला जाता है कि CO2 आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में कब मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर कम से कम 31 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, और सॉरी प्रेशर 31, ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका प्रेशर है। तो अगर आपको CO2 सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में चाहिए दैट मीन्स यू हैव टू, आपको जो टेम्परेचर है मतलब आपको इतना इंक्रीज करना पड़ेगा CO2 का टेम्परेचर, कितना 31 डिग्री सेल्सियस तक, और जो प्रेशर होगा CO2 का वो आपको कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? 74 बार तक। देन ओनली यू कैन फाइंड CO2 इन इट्स सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म, तभी मिल सकता है आपको। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम हो गया। इससे नीचे नीचे तक तो CO2 जो है लिक्विड गैस फॉर्म में दोनों में मिलेगा, और 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाएं आप या 74 बार से ऊपर चले जाएं तो ये आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म में मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि वाटर, ठीक है, वाटर का क्या एग्जांपल बताया। अब देखिए वाटर और CO2 दो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, मगर वाटर और CO2 में फ़र्क ये है कि वाटर, CO2 का जो मैंने भी आपको टेम्परेचर और प्रेशर बताया ये बहुत ईजिली असेसिबल है, मतलब आप बहुत ईजिली अटेन कर सकते हैं, बहुत ईजिली लेके आ सकते हैं ये टेम्परेचर और प्रेशर, और CO2 आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में मिल जाएगा। मगर वाटर जो है उनका क्रिटिकल पॉइंट मैच करवाना या उनका क्रिटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेशर लाना ये थोड़ा सा हार्ड है। कैसे? देखिए H2O के केस के अंदर, H2O के केस के अंदर इनका जो अपना क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर तो कुछ होता है 374 डिग्री सेल्सियस, और मतलब इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ये नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रेशर है वो आपका कुछ रहता है 221 जो है बार, इससे ज़्यादा होना चाहिए, करीबन इतना ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको H2O आपको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये जो हमने इसका फेज डायग्राम पढ़ा था, अगर आपको H2O सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में चाहिए तो आपको टेम्परेचर इतना करना पड़ेगा H2O का और इतना प्रेशर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मगर उसके बावजूद वाटर को उनके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि देखिए अगर आपने यहाँ पे आपको ये H2O जो है वो SCF की फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको H2O जो है वो SCF की फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब आप 374 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रॉस कर चुके हैं और 221 बार से ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत मुश्किल होता है करना, बट ऑफकोर्स रिसर्च में तो होता ही है, एक्सपेरिमेंट्स में होता ही है। यहाँ पे आपको ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में मिल जाएगा। अब अगर आप इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड H2O का ऑक्सीडेशन कर दें, सुपर क्रिटिकल वाटर ऑक्सीडेशन, ये एक प्रोसेस होती है। अगर आप ये सुपर क्रिटिकल वाटर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन करने के कारण आपको बहुत सारी इनकी एप्लीकेशन, बहुत सारी जगहों पे काम में आता है। मतलब यहाँ पे आपने सुपर क्रिटिकल वाटर लिया फिर उसका ऑक्सीडेशन कर दें तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे कि क्या एप्लीकेशन है, जो भी आपके हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं शिप्स के या फिर इंडस्ट्रीज़ के, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये काम में आता है। ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में काम में लिया जाता है, ये आपके प्योरिफिकेशन की फॉर्म में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, इसलिए ये भी प्रोसेस बहुत फेमस है। ये जो प्रोसेस है, ये जो काम है बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स जो हैं, केमिकल साइंटिस्ट या केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और एग्जाम्पल CO2 और H2O के अलावा और कौन से एग्जाम्पल है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के, मैं वो भी बता देती हूँ। आपका होता है ये इथेन,
इथेन भी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की फॉर्म में लेके आया जा सकता है, ठीक है। प्रोपेन हो गया, ये कुछ होता है C2H6 और ये आपका कुछ होता है कितना C3H8। उसके अलावा मिथनॉल, तो ये आपका होता है CH3OH और उसके अलावा इथेनॉल, तो ये आपका हो जाएगा C2H5OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बेसिक है। तो ये इस तरीके के बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म बना सकते हैं और उनके बहुत सारे यूसेज है। अच्छा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के कौन कौन सी और एप्लीकेशन है? एटमाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन तो मैंने आपको बताया क्या होता है, गैस को सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करना, और वो ऑफकोर्स वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी बहुत सारी जगहों पे काम में आती है। अब डिटेल में मैं भी इतना सब नहीं बता सकती, बट डिटेल में आप जाके सर्च कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन का क्या बेसिक यूज़ है। उसके अलावा प्योरिफिकेशन में काम में आता है, क्लीनिंग में काम में आते हैं SCF। उसके अलावा ड्राइंग में काम में आता है, स्टरलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसमें काम में आता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जहाँ पे ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का काम में लिया जा रहा है एट प्रेजेंट। केमिकल साइंटिस्ट का तो मैंने आपको काम बता ही दिया। तो इसके लिए आपको ये पूरा फेज डायग्राम और ये पूरा ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ये सारे कर्व्स, ये सब चीज़ की जानकारी होनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़, जब यहाँ पे ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनेगा किसी भी सब्सटेंस का, जब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनता है तो जैसे मैंने कहा ये लिक्विड और गैस दोनों का एक साथ मिक्सचर आप कह सकते हैं वो होता है। तो इनमें प्रॉपर्टीज भी लिक्विड और गैस दोनों की होगी। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड इज नोन फॉर देयर डेंसिटीज, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की जो ज़्यादातर केसेस में जो डेंसिटी होगी वो लिक्विड जैसी होगी, और गैस किसके लिए जाने जाते हैं? विस्कोसिटी के लिए। तो जो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की विस्कोसिटी होगी वो गैस जैसी होगी। उसके अलावा और क्या चीज़ है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो होते हैं ये, क्योंकि ये लिक्विड नेचर भी इनके अंदर होता है, तो ये अपने अंदर किसी भी मटेरियल को बहुत इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे लिक्विड डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रोसेस होता है? एक प्रोसेस होती है इफ्यूजन और डिफ्यूजन। आपने दो प्रोसेस सुनी होगी। इफ्यूजन क्या प्रोसेस होती है अगर आपको नहीं पता? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कंटेनर है और ये यहाँ पे आपकी जो है ना गैस मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक ये छोटा सा ये होल कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ये छोटा सा पिन होल कर दूं, पिन होल मतलब बहुत छोटे साइज का, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे ना, धीरे धीरे इसके थ्रू यहाँ बाहर आ जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाती है इफ्यूजन। What is diffusion? If there is a gas molecules in a closed enclosed cylinder and if there is a pinhole, then gas molecules do get passed from this pinhole. ये pinhole का मगर शर्त ये है कि जो साइज है वो आपका, इसका जो डायमीटर या जो अपार्चर है वो इन गैस मॉलिक्यूल्स के मीन फ्री पाथ से कम होना चाहिए। ये अगेन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ ध्यान यहाँ पे ये रखना है इफ्यूजन के अंदर कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है एक कंटेनर में पैक होते हैं और एक पिन होल के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं, तो ये इफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं, गैसेस आपस में मिक्स होती हैं तो डिफ्यूजन, और पिन होल से अगर गैसेस निकल रही हैं तो वो इफ्यूजन कहलाता है। इफ्यूजन और डिफ्यूजन के एग्जाम्पल, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल तो है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग इन अ क्लोज्ड रूम एंड इफ सडनली एनी पर्सन एंटर्स इन अ रूम वेयरिंग परफ्यूम और डीओ, तो आपको 1-2 मिनट के बाद आप यू कैन फील दैट ओडोर, आप वो सेंस कर सकते हैं वो ओडोर, तो ये एग्जाम्पल हुआ डिफ्यूजन का। वैसे ही इफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या होता है? यू लाइट अप द बर्नर, आप बर्नर ऑन करते हैं तो उसमें वो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ से होल से गैस निकलती है, इफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इफ्यूजन और डिफ्यूजन के देख सकते हैं। तो ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है ये भी सॉलिड में से इसी तरह इफ्यूजन की प्रोसेस के तरह ही पास ऑन होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। इफ यू डू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. We will going to do different topics in thermodynamics in our next lecture. Thank you. Khamma Ghani.